Hello students, today I am going to discuss a new chapter, that is preparation of journal. Okay, before I am going to start that chapter, you have to know what is the meaning of that word double entry system, what is the meaning of that word journal. First of all, we know that double entry system means every transaction which involves at least two persons, parties or other accounts. For example, if there is a receiver of goods, there must be a giver of goods also. One of them is debited and other is credited in the books of accounts. Now the question is, sir, what is the meaning of that word journal? Now the answer means journal, basically the word which has been derived from the French word jour. I repeat my word, the French word jour. Okay, it is a French word of jour, mean basically it's a daily records. It means daily records. Okay, journal is a book of prime records in which all business transactions are recorded first in a chronological order. I repeat my line. Journal is a book of prime records in which all business transactions are recorded first in a chronological order. Okay. So first of all, we have to know what is the meaning of the word journal and double entry system. Now the question is, how you opening entry in journal. The first entry we have to record in journal is called opening entry. So opening entry means the first entry we record in the journal is called opening entry. Okay, so now we have to know that thing. This is a basic questions, that Indian accounting standards, basically it is a one kind of general knowledge, that Indian accounting standards are replaced by International Financial Reporting Standards with effect from 1st April 2011. So I have to write Indian accounting standard are replaced by the International Financial Reporting Standard, it is IFRS, with effect from 1st April 2011. This is a very important general knowledge for every commerce students, okay, and accounts lover. So you have to remember my line. The Indian accounting standards are replaced by International Financial Reporting Standards IFRS with effect from 1st April 2011. Okay, so we recall the rules of traditional rules of debit and credit. It is a traditional rule. We recall that thing. In our previous chapter, we already discussed about that thing. Here, accounts is personal, real and nominal. Personal account, the treatment is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. In real account, what comes in debit, what goes out credit.
in nominal account, all expenses and losses are debit, all income and gains are credit. This is the main criteria you have to fulfill when you solve any kinds of journal. Either you have to adopt traditional approach or traditional rules, or you have to adopt that modern or American approach. Now the question is, what is the difference? Basically there is no difference, but still you have to open some separate accounts. Here asset, liabilities, capital, expenses and losses, income and gains are the accounts. Now the treatment is asset. Here the treatment, debit will be increases, credit will be decreases. Liabilities vice versa case. If it is a liabilities, पूरा उल्टा केस होगा, डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट increases, credit increases, capital be same, expenses debit increases, credit decreases, income debit decreases, credit increases. अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल्स क्या था हम लोगों का? एसेट इज इक्वल टू एल प्लस सी. हियर एसेट का रूल्स देखो, डेबिट इंक्रीजेस, क्रेडिट डिक्रीजेस. लाइबिलिटीज का रूल्स देखो, डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट इंक्रीजेस. कैपिटल का रूल्स देखो, डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट इंक्रीजेस. यानी दोनों का रूल सेम है, बिकॉज ये दोनों तो एक साइड में पड़ता है, ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है. ओके, सो ये चीज़ याद रखना, दोनों अलग अलग है रूल्स, मगर जब ऐसे साइड में हम लोग चिंता करेंगे उस समय एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हम लोग ऐसे साइड में लेके आएंगे, और इनकम एंड गेंस को हम लोग लायबिलिटीज और कैपिटल के साइड में इनकम चिंता करेंगे. ओके, तो सेम ये तीनों का सेम, इन दोनों का सेम रूल्स, इंक्रीज और डिक्रीज का. ओके, सो ये चीज़ याद रखना. अभी हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री के बारे में. देखो, ये टोटल मैंने 62 जर्नल एंट्रीज का एंट्री का जो ट्रीटमेंट है उसको मैंने लिया है. ये ट्रांजैक्शन से बेसिकली जो स्टूडेंट्स ये सभी ट्रांजैक्शन को याद रखेगा उनका जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसको याद रखने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वही याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या है. यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग्स. आइदर यू हैव टू अडॉप्ट traditional approach or either you have to adopt American approach, but you have to solve that question according to one approach or double approach, whatever is there, but still you have to adopt at least one of them. देखो, started business with cash, इसमें ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. वाई? कोई भी बिजनेस शुरू हो रहा है, पिक्चर को याद रखना. मैंने जो हमेशा मैं लिखा था वो चीज़, एक पैसा आदमी मिस्टर ए वो बिजनेस को शुरू कर रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के लिए वो पैसा एक लायबिलिटीज है, बिकॉज ये पैसा तो बिजनेस का नहीं है, मिस्टर ए का है, तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में ही रहेगा. वो जो पैसा है वो क्रेडिट ही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट मैंने क्या किया, क्रेडिट किया. और डेबिट कैश किस लिए, बैंक के पास जो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो कैश तो ऑब्वियसली हम लोगों का रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट रूल्स, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, वही इसमें अप्लाई हुआ है. कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ये जो तुम्हारे पास अभी मैंने 63 का रूल्स तुम लोगों के साथ शेयर किया, आई थिंक 63 है, सॉरी 62. ये 62 रूल्स तुम लोग एक स्नैपशॉट ले लो अपने मोबाइल पे और उसको कॉपी में उठाओ. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, स्नैपशॉट ले लो और ये कॉपी में उठाओ. कॉपी में उठाने के बाद हर एक ट्रांजेक्शन को माइन्यूटली देखो और इसको तुम सोचो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच.
ओके, सो ये हर एक ट्रांजेक्शन को तुम लोग सोचना इसके बारे में। ये कॉपी में उठा लेना। कॉपी में उठाने से क्या होगा, तुम लोग को ये हमेशा अपने कॉपी में रहेगा। ये वन काइंड ऑफ मंत्रा टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विथ जर्नल। ओके, सो इस क्वेश्चन को उठाने के बाद तुम लोगों के साथ अभी मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व अभी कराऊंगा। वो क्वेश्चन ये है, this is the question. Here it is written, journalizing the following transactions. April 1st 2012, commence business with cash 50,000 and machinery worth rupees 30,000. April 2nd, open a bank account with HDFC Bank with rupees 5,000. Next one, April 3rd, April 30 तक इस क्वेश्चन को मैंने खींचा है। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू डेट वो ट्रांजैक्शन भी चेंज हो रहा है। ओपन बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, बिजनेस तो शुरू हुआ है ना। बिजनेस तो शुरू करने के समय वो जर्नल हम लोग करते हैं। जर्नल को हम लोग और एक नाम से भी पुकारेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, ये भी याद रखना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एक नाम है जर्नल का। जो भी है ये क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस रूल्स। सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मेट को हम लोग बनाएंगे। फॉर्मेट देखने में ऐसा है। इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, कुछ लिखना पड़ेगा इससे पहले। जैसे कि देखो, इसमें लिखना पड़ेगा जर्नल, ऊपर लिखने पड़ेगा इन दी बुक्स ऑफ। अगर नाम होगा तो नाम, तो नहीं है तो छोड़ देना। इन दी बुक्स ऑफ डैश जर्नल एंट्रीज, और जर्नल भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जर्नल एंट्री भी लिख सकते हो, जर्नल भी लिख सकते हो। ओके, इसमें हम लोग लिखेंगे डेट। इसके बाद ये आएगा पार्टिकुलर्स। इसके बाद इसको लिखेंगे एलएफ। ये एलएफ का फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, याद रखना। एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो। ओके, इसके बाद इसको हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं नोट में, एलएफ इज इक्वल टू लेजर फोलियो। ओके, ये पोलियो मत लिखना, ये फोलियो लिखना। कुछ बच्चे पोलियो भी लिख लेते हैं पहली बार। ओके, इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेबिट, साथ रुपीस का सिंबल, क्रेडिट, इसके साथ रुपीस का सिंबल। ओके, ये हम लोगों का क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना ही पड़ेगा कोई भी जर्नल को सॉल्व करने से पहले। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई बच्चे ये जर्नल को सॉल्व करने से पहले ये नहीं लिखेगा, ऑब्वियसली उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉपर सीक्वेंशियल में नहीं लिखेगा तो कोई स्टूडेंट्स इस जगह में अमाउंट भी लिखते हैं, वो भी हम लोग लिख सकते हैं, मगर ऊपर डेबिट लिखना ही पड़ेगा। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है ये तुम लोगों को भी नोट में लिख लेते हैं। डी आर इज इक्वल टू डेबिट, सी आर इज इक्वल टू क्रेडिट, याद रखना। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म में डी आर भी लिख सकते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सी आर भी लिख सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन क्या था, कॉमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 एंड मशीनरी रुपीज 30,000। इस जगह में अकाउंटिंग इक्वेशन का वही बात याद रखो। हम लोग क्या करते थे, कॉमेंस बिजनेस विथ कैश में कैश को अंदर हम लोग प्लस करते थे 50,000, मशीनरी के अंदर भी प्लस करते थे 30,000, और कैपिटल को लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के अंदर कैपिटल के पास हम लोग क्या लिखते थे, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80,000। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि कैपिटल इटसेल्फ एंड क्रेडिट, बिकॉज
ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों में ही ये बात बोला गया कि कैपिटल फर्स्ट टर्म जब बिजनेस शुरू होगा उस समय क्रेडिट रहेगा, बिकॉज वो कैपिटल बिजनेस का नहीं है, वो ओनर का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अप्रैल 1 लिखेंगे इस जगह में। उसका रुको, ये इंक चेंज कर लेते हैं। अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट। जैसे मैं लिख रहा हूँ वो वैसे ही लिखो। अगर तुम लोग कॉलेज में जाओगे, अगर सीए करोगे, जो भी करोगे, उस समय प्रॉपर सीक्वेंशियली तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीक्वेंशियली नहीं लिखते हैं, बाद में जाके बोलते हैं कि टीचर ने सिखाया नहीं। बेसिकली सीखना पड़ेगा अर्ली टाइम में। ओके, देखो मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल मशीनरी अकाउंट डेबिट। व्हाई? बिकॉज दिस द रूल्स। इसके बाद मैंने क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को, मगर लिखेंगे कहाँ से, देखो सी और एच से नीचे से शुरू करेंगे। 2, कोई कोई बच्चे इधर में 2 लिखते हैं, कोई कोई बच्चे इस जगह में भी 2 लिखते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। ये सी और एच जो भी है कैश में, जैसे कि एस और एच ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। 2 कैपिटल अकाउंट कितना है, अमाउंट अभी लिखेंगे 50,000, 30,000, ये दोनों चला गया हम कैश और मशीनरी में। और 80,000 कहाँ पे आएगा, तुम्हारे क्रेडिट साइड में टोटल। यानी कैश देखो 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। ये हम लोग का 80,000 चला आया। और हमेशा याद रखना, एवरी डेबिट मस्ट बी क्रेडिट। तो डेबिट का जो वैल्यू है क्रेडिट का वैल्यू मिलना चाहिए। सो अभी इसके लिए नरेशन एक लिखना पड़ता है। नरेशन क्या है, ये एक सिंपल एक रिकॉर्ड्स है जिसको हम लोग लिखते हैं आफ्टर दैट जर्नल। ये ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा मजबूती देता है फ्यूचर में, अगर कोई भी डिफॉल्ट केस आए तो। ओके, सो बीइंग, इसको क्या लिखेंगे, बीइंग सिर्फ लिख लो, और जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो, बिजनेस स्टार्टेड। अमाउंट को छोड़ के, मैं शॉर्टकट तुम लोगों को बोलता हूँ, अमाउंट को छोड़ के क्वेश्चन में जो बोला है वो डायरेक्ट उठा दो, मगर सामने बीइंग लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और कमेंस्ड भी लिख सकते हैं हम लोग। ये पहली बार ये बिजनेस स्टार्टेड ऑब्लिक कमेंस्ड ये लिखना, ठीक है, मगर नरेशन मस्ट देना चाहिए। इसको फिर हम लोग ऐसे बंद करेंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ HDFC बैंक with ₹5,000. Here it is written HDFC Bank, यानी बैंक अकाउंट is a personal account. April 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहे और नाम यानी पर्सनल अकाउंट। रूल्स क्या है तुम लोग जानते हो। अभी सोचो किस लिए मैंने डेबिट किया। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ओके, मैं तुम लोग को शॉर्टकट बार बार बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज April 3, वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश। कैश में बोला है, मोहन से परचेज किया है। अगर इस जगह में इन कैश जो बात है वो नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता तो क्या होता, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ये ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन होता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। अगर नाम के साथ कैश बोला है इन कैश, तभी ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन हम लोग क्रेडिट नहीं, ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। जब भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तभी हम लोग नाम को, इस नाम को इतना
महत्व नहीं देंगे, नाम को हम लोग याद नहीं रखेंगे जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा तो, मगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो उस समय नाम को याद रखेंगे। ओके, सो ये हम लोग नाम को छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं कैश ट्रांजेक्शन को याद रख के। क्या होगा हम लोगों का, परचेज अकाउंट डेबिट PURCHASE डेबिट टू कैश अकाउंट credit. This is 8,000 and 8,000. What is the narration? Being goods purchased in cash. Okay, now we have to draw some Next one is April 4. What is the condition? Paid for stationery rupees 200. Here stationery is an expenses. You have to pay. How pay? By cash. Yani cash goes out. Stationery is an expenses. We know all expenses and losses are debit. That's why we have to write April 4th first. Then we have to write stationery account debit to cash account. Okay, stationery account debit to cash account. What is the amount? 200. Everyone, first of all, you write your question first, then solve your answer. Okay, solve it. Before solving, you have to write that question. क्वेश्चन को रखो, इसके बाद क्वेश्चन को देखो, इसके बाद सॉल्व करो। पहले उठा लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को उठा लो। पहले क्या लिखेंगे? बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी, ओके, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज अप्रैल, क्या है भाई? अप्रैल 5, ये भी देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर रुपीज 3000। मैं किसके पास सोल्ड किया? सोहन के पास सोल्ड किया। मगर मैं क्या, ये जो सोल्ड किया, सोल्ड करने के समय सोहन ने पैसा दिया? डायरेक्टली लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर कैश रुपीज 3000? नहीं लिखा है ना। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, बिकॉज सोहन का नाम लिखा है मगर कैश कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये हम लोग सोच लेंगे जब भी ये कैश के बारे में कुछ लिखा नहीं होगा। सो सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर रुपीज 3000, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सोहन ने, देखो मैं दोबारा से बोलूं, सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी सोहन रिसीवर है। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। आई थिंक मैंने गलत लिख लिया। हाँ, मैंने ठीक ही लिखा। 3000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, बीइंग goods sold to सोहन। ओके, इसके बाद हम लोग जाते हैं, इसको पहले खींच लेते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट कमीशन रुपीज 200। April 6 receipt commission rupees 200.
अप्रैल 6 रिसीव कमीशन ₹200। कमीशन रिसीव किया तुमने, कमीशन रिसीव इज एन इनकम। कैसे तुमने रिसीव किया? ऑब्वियसली तुमने कैश में रिसीव किया, तो कैश आ रहा है यानी कैश अकाउंट, तो रियल अकाउंट है, आ रहा है यानी डेबिट होगा टू क्या होगा? कमीशन received account. Okay, you have to remember the thing. You have to identify first what is the nature of that account, then you have to solve it. Being commission receipt. Okay, next one is, दूसरी पेज में चला जाता है हम लोग, उसको पहले फिलअप कर लेते हैं। डेट, particulars, LF, डेबिट, रुपीस का सिंबल, क्रेडिट, रुपीस का सिंबल। ओके, सो यू टू कंटिन्यू द जर्नल। हम लोग का पेज में जगह नहीं है इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। तुम लोग, अगर तुम लोगों के पेज में है जगह, तुम लोग कंटिन्यू करते रहो। तो तुमने अप्रैल 6 तक कर लिया ना, देख लेते हैं एक बार। अप्रैल 6 तक कर लिया, अभी अप्रैल 7 में जाएंगे। रिसिप्ट कैश फ्रॉम सोहन ऑन अकाउंट ऑफ ₹2000, यानी सोहन से मैंने पैसा रिसिप्ट किया है, कितना? 2000। क्या लिखेंगे हम लोग? अप्रैल 7, इसको नीचे दाग देना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं अप्रैल 7 कैश अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली पैसा रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। किसने दिया? हु इज ए गिवर? मिस्टर सोहन। मिस्टर सोहन्स अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ। कितना है दिया? 2000 दिया। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम सोहन्स। ओके, तो ये बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे अप्रैल 8 में। रेंट इज ड्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यू? ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग, यानी पैसा दिया नहीं। अगर पैसा नहीं दिया है तो ऑब्वियसली ये लाइबिलिटीज टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यानी ओनर, जो उस लैंड का ओनर है, उसको पैसा नहीं दिया। कितना दिन दिया? 300 भी नहीं देता है, इतना कंजूस है। ठीक है, रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड ₹300 फॉर ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, सो ये हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? रेंट इज ड्यू यानी इट इज एन आउटस्टैंडिंग, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या आउटस्टैंडिंग है? रेंट आउटस्टैंडिंग। सो रेंट आउटस्टैंडिंग इज ए वन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगा अगर क्रिएट होगा तो। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइबिलिटीज अगर क्रिएट हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करेंगे? रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड। सो रेंट क्या है? रेंट तो ऑब्वियसली एक एक्सपेंसेस है। सो हम लोग जानते कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। हियर रेंट obviously an expenses, that's why we have to write April 1st, April 8, I think April 8, rent account debit to rent outstanding, outstanding यानी हेडेक, हेडेक यानी liabilities, liabilities यानी credit ₹300 being rent due to the landlord। ओके, तो ये हो गया अप्रैल 8 का सॉल्यूशन। अभी हम लोग जाएंगे अप्रैल 10 में।
पेड सैलरी टू टू पेड सैलरी टू मिस्टर गुप्ता, ही इज एन मैनेजर, पेड सैलरी टू मिस्टर गुप्ता ₹4,000, यानी तुमने सैलरी पे किया किसको, मिस्टर गुप्ता को। इसमें तुमने क्या पे किया वो इम्पोर्टेंट है, किसको पे किया उससे भी ज्यादा क्या पे किया वो इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली तुम पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे घर से कुछ ना कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। अगर पैसा नहीं जाएगा, अगर गुप्ता के बारे में हम लोग सोचेंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरह लगेगा। मगर अकाउंट्स में जब भी नाम दिया होगा उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो भी सकता है, मगर ये देखेंगे पहले हम लोग क्या किया। हम लोगों ने पे अगर कर लिया तो ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन है, उस समय नाम का इतना महत्व नहीं है जितना सोचने में लगता है। सो पेड सैलरी टू मिस्टर गुप्ता, ही इज एन मैनेजर, you have to pay that salary to that Mr. Gupta. That's why you have to write April 10 first, then you have to write salary account debit to cash account. You have to write in cash mode. That's why that 4,000 you have to pay that 4,000 by cash, and you have to write that narration being salary paid to close it. Maybe okay. अपने पास स्केल हमेशा रखना, और याद रखना एक चीज़ कि स्केल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। जब तक तुम कॉमर्स को लेके और अकाउंट्स को लेके सोचोगे, कॉमर्स को छोड़ दो या अकाउंट्स को लेके सोचोगे, तब तक तुम्हारा स्केल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। सो स्केल को मत छोड़ना, अपने बैग में हमेशा स्केल को रखना, और वो स्केल हमेशा तुम लोग इसको यूज़ करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लास्ट में लोग लिखा हुआ है ये चीज़ अप्रैल 30 में सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेज ओनली ₹75 इन ए रुपी। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट यानी वो पैसा नहीं दे सकता। अभी 70 पैसा इन ए रुपी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 100 रुपीज़ में सोचो कि 100 पैसा वो देने वाला था, मगर अभी उसके पास ऐसा कंडीशन हो गया 75 पैसा दे सकते हैं। अगर 100 रुपीज़, 1 रुपये में वो 100 पैसा दे सकता था, अभी 1 रुपये में 75 पैसा दे सकता है। ये कंडीशन कब आता है? जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी 1 × 100, यानी 100 पैसा वो दे सकता था पहले, मगर 1 × 75 यानी 75 पैसा अभी दे सकते हैं। अगर ये 1 रुपये है तो ये वैल्यू कितना कम हो गया? ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हो गया 25 का, यानी इसके लिए वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या है? जब पैसा नहीं दे सकता। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, वो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर देगा, क्वेश्चन जो बनाएगा वो ऐसा दे सकते हैं, सोन इज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट एंड पेज ओनली ₹75 पैसा इन ए रुपी, लाइक दिस। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश अकाउंट डेबिट को अच्छी तरह से लिख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू शुहन्स अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट कितना है? 750। बैड डेप्ट कितना है? 250, टोटल है 1000। ये मैंने कैसे लिखा?
ये क्वेश्चन अभी तुम लोगों के दिमाग में घूम रहा है। ये मैं सर कैसे हम आपने लिखा, देखो सोहन अप्रैल 5 में, इस जगह में देखो सोहन ने जो सेल किया था, देखो सोहन के पास कितने रुपीस में सेल हुआ था, 3000 में। सोहन ने कितना पैसा दिया बिजनेस को, मेरे बिजनेस को और तुम्हारे बिजनेस को, जो भी है। सोहन के पास सोल्ड हुआ था 3000 रुपीज़, सोहन ने बिजनेस को दिया 2000 रुपीज़ और बोला कि मैं बाद में दूंगा बाकी पैसा। मगर अप्रैल 30 तक आते आते सोहन ने बोल दिया कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरे पास, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे पास जो बाकी 1000 रुपीज़ बचा हुआ है इसमें से मैं 750 रुपीज़ ही दे सकता हूँ, क्योंकि 75 पैसा पर रुपीज़ में मैं दे सकता हूँ, यानी 1000 में मैं 750 ही सिर्फ दे सकता हूँ। ये लॉजिकल फैक्टर है। ये इस फैक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग के ऊपर लॉजिकल बूंद गिराओ, सिंपल बात। लॉजिकल फैक्टर है, लॉजिकल फैक्टर को हम लोगों को लॉजिकल तरीके से सोचना है कि 1000 रुपीज़ और 750 रुपीज़ कैसे हुआ है, 75 पैसा। सो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो 1000 देने वाला था मगर अभी दे सकता है 75 में 750। सो बाकी कितना हुआ, बाकी 250। ये 250 क्या है, वो पैसा नहीं मिल सकता सोहन से कभी भी, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेप्ट। ओके, जो पैसा कभी भी कोई भी डेटर से हम लोग नहीं मिलेगा, वो पैसा को हम लोग बोलेंगे बैड डेप्ट। सो मैंने क्या किया, जर्नल में देखो, चीज़ को देखो, मैंने वो बैड डेप्ट को इंक्लूड किया। कितना है, 250 रुपीज़। मैंने ये 250 रुपीज़ कहाँ से लिया, सोहन कितना देने वाला था, 1000 रुपीज़, मगर सोहन ने कितना दिया, वो 750। ऑब्वियसली गैप कितना है, 250। और हम लोग जानते हैं एवरी डेबिट मस्ट बी क्रेडिट, तो डेबिट में हो रहा है 750 और क्रेडिट में हो रहा है 1000। बाकी जो गैप 250 है अब इसको फिलफिल करना पड़ेगा। वो फुलफिल कैसे करेंगे, बैड डेप्ट को लिख के। तो बैड डेप्ट डेबिट है, और हम लोग जानते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, हियर बैड डेप्ट इज लॉसेस, दैट्स व्हाई दैट बैड डेप्ट इज ए डेबिट। सिंपल बात, सिंपल तरीके से सोचो। ओके, सो अभी हम लोग लिखेंगे नरेशन क्या, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम Sohan and balance written off as bad debt. Okay, next, additional capital introduced by the businessman 10,000. So obviously क्या लिखेंगे हम लोग, एडिशनल कैपिटल है बिजनेस के लिए, अच्छी बात है। अप्रैल 30 में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही रिपीट करेंगे, टू कैपिटल कितना है, 10,000 बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, last one is what, depreciate machinery at the rate of 10% for 1 month. depreciate machinery ये कहाँ से आ गया, इसका लिंक कहाँ से है, इसका लिंक अप्रैल 1 के साथ है। मैंने मशीनरी बोला, इसमें भी मशीनरी है, कितना है, 30,000। मशीनरी का डेप्रिसिएट का मतलब क्या है, डेप्रिसिएट मीन्स, हमेशा याद रखना, कोई भी टेंजिबल एसेट उसका डेप्रिसिएशन होता है सिर्फ लैंड को छोड़ के। लैंड कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता, उसका एप्रिसिएशन होता है। मगर मशीनरी बोलो, जो भी तुम्हारा इंटेंजिबल नहीं टेंजिबल एसेट है, जो भी तुम्हारा टेंजिबल एसेट है वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। सो मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% है, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
वर्किंग नोट्स, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लास्ट में, इसमें लिखो कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, 10% है, और मशीनरी का वैल्यू कितना है, वो 30,000 है, और डेप्रिसिएशन है 10%। वैल्यू ऑफ दैट machine into percentage of depreciation into month. Here value is rupees 30,000 into 10 by 100. 10% is there, I think 10%. What is the month? 1 month. तो ऑब्वियसली 1 मंथ कैसे लिखेंगे, 1/12 करेंगे डायरेक्टली। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 ओके। तो 3 1 ज़ा 3,000, 3 4 ज़ा 12, 4 250 ऑब्वियसली 1000। ओके, so answer is rupees 250, it's the value of depreciation. so हम लोग क्या लिखेंगे, depreciation on machinery account debit to machinery account being depreciation charged on machinery। कितना है वैल्यू, 250। मैंने कहाँ से लिखा, मैंने वर्किंग नोट से लिखा। ओके, अप्रैल 30। अभी देखना, वो जो डेबिट साइड है, पूरा पहले जो मैंने डेबिट साइड से शुरू किया था, ये पूरा डेबिट साइड ऐड करो, सब कुछ ऐड करो, सब वैल्यू ऐड करो, पूरा वैल्यू, सेकंड पेज का भी पूरा वैल्यू ऐड करो अपने खुद की पेज कॉपी में। इसके साथ तुम्हारा क्रेडिट साइड का भी ऐड करो सभी वैल्यू। देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक साथ समान हो जाएगा। ओके, समान हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा सेम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक क्वेश्चन को लेके बात करेंगे। सो बाय।